तो मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ. You take a film like Swades. It's very typical of this, of that era. कि this Brahmin from NASA comes to India, makes like a small class 3 science project. पानी से बल्ब चल गया, ठीक है, and he inspires him to stay back and says, I will solve India's problem. अब whatever you think of that film, there is a naive innocence in it कि we want to build this thing, we want to now everyone is leaving. Other second dangerous trend is India is held together by the patience of the marginalized. The great contract of Indian nationhood, unlike our South Asian neighbors, is कि इस political system को चालू रखने में आपका भी stake है. Railways, banking, all of these, army, military, paramilitary, these were employment guarantees. Where large section of India, you were saying that you're very poor, if you crack this, your life will still be hell, you will live somewhere, बहुत ही basic salary मिलेगी, लेकिन आप उसमें एक dignified तरीके से अपना परिवार चला सकते हो, and you can raise your next generation to get educated. So you have given them the generational dream. Hope. Right? That is holding India together. Now in the last 25 years, that dream has been systematically broken down. The great American dream is I start a business, one great idea will make me a millionaire. The great Indian dream is not instantaneous. The great Indian dream is I will struggle. My father, my family, my parents, my mother struggled, but वो यहाँ पर थे. I will come up to here. My next generation incremental growth होगा. Education is the pathway. We have systematically broken those pathways down. At what point the patience of the marginalized wears off? तो बिजनेसमैन की बात से मुझे याद आया कि you have written in your book about the great migration, जिसमें कि बहुत सारे जो rich elite सवर्णास हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं और जल्दी मतलब दूसरी नेशंस में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं. इनफैक्ट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिछले आई ऑल्सो टॉक टू यू अबाउट इट, कि मैं देख रहा था कि ये बहुत एक नया भी पैटर्न आ रहा है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो अपना होम टूर दे रहे हैं. इवन राखी सावंत इज इन दुबई, हनी सिंह का होम टूर आ रहा है दुबई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. विवेक ओबरॉय का भी इज इन दुबई. मतलब बहुत सारे जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं बहुत सारे दुबई जा रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट हनी सिंह का मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट, ये मत पूछो क्यों देख रहा था, बट मैं देख रहा था क्योंकि मैं देखता हूँ रैंडम चीज़ें. तो उसमें कहता है कि उससे पूछता है कि आप दुबई क्यों रहते हो, बोलते बिकॉज आई थिंक दुबई इज द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? हाँ, मींस इट डजंट फील लाइक यू आर आउटसाइड ऑफ इंडिया और व्हाटएवर. चलो वॉट एवर रीज़न वॉज दैट. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे लोग अब जा रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट्रेटर जो राइट कमेंट्रेटर भी थे वो भी अब सवाल करते हैं ट्विटर पे कि इतने ज़्यादा लोग क्यों जा रहे हैं, इतने ज़्यादा हमारे बिजनेसमैन सब बाहर क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग. इवन दे आर कंसर्न अबाउट. राइट. आज जो आई है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे न्यूज़ के बारे में, H1B जो वीज़ा का उन्होंने चेंज कर दिया. मे बी यू कैन टॉक अ लिटिल अबाउट दैट एज वेल, कि वो चेंज कर दिया, उसके बाद और दिक्कत हो जाएगी उनको बाहर जाने में, इंडियंस को. राइट. तो अब इंडियन एलिट ना यहाँ रह पा रहा है सिटीज़ में, ना बाहर जा पा रहा है, तो करेगा क्या? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. सी वन सेक्शन इज इन विच आई हैव पुट इन द बुक, एंड जब मैं ऐसे टॉक्स पे जा रहा हूँ, very often people are also asking one question that comes in different forms is, where do you see all of this going? And I don't see a lot of good places this can go. See, the most hopeful answer is कि somehow around this period in India, we as a collective get our act together. कि suddenly we have like this generational cultural moment where we are like, guys, somewhere कहीं हम अपना रास्ता भूल गए. As a society, as a culture, as a nation, we have to come together, and because this is going to affect everybody across all social groups, across all spaces, we need to redo this. मैं नहीं बोल रहा ऐसा नहीं हो सकता है. I wish ऐसा हो. I don't see that happening. Instead, what we are seeing is two very dangerous trends. One you've already mentioned, which is the elites who had the steering wheel of policy, I will say, not even power, for the last 25-30 years are leaving India, right? We often say the last 30 years is the history of neoliberalization reforms.
politicians started using development as an electoral issue. पहली बार late 90s में शुरू होता है, and then last 20 years till I would say 2020 to 2023 अब पलटने लग गया है. Elections are fought on the plank of development broadly, generalized अगर मैं बोलूँ. So there was a huge push towards it, and what that development meant, the politician doesn't know. Politician को बस इतना लगता था, let's say Chandrababu Naidu या even towards an extent, to an extent Modi or whoever, is my job is to get investment to the state. Yeah. Right? I need to be seen as business friendly. I need to be seen with industrialists. I need to do these big investment melas and get investment to the state. So newspaper headlines used to come. Yeah. 80,000 crore investment promised in Gujarat or Maharashtra. Vibrant Gujarat and all of that, right? So that Mamta bhi karti thi फिर Bengal में. So everyone was doing that. That's what the politician thought the job was. But what will that investment be like? Who will invest? Where will that money go? What kind of companies should come? How the job creation will happen? That was often left beyond the political representative to this class of quote unquote expert Indians. These were always these people who had like one foot in the tech industry, one foot in some sort of policy role, one foot in politics also, one foot in real estate development. मतलब तुम किसी तरीके से भी इनको मर्ज करो, ये एक तबका था, one cohort was there. And early 2000s, they were still invested in India. तो मैं बहुत बार example देता हूँ. You take a film like Swades. It's very typical of this, of that era. कि this Brahmin from NASA comes to India, makes like a small class 3 science project, पानी से बल्ब चल गया, ठीक है? And he inspires him to stay back and says, I will solve India's problem. Whatever you think of that film, there is a naive innocence in it. Ki we want to build this thing. We want to. Now everyone is leaving. That section had the steering wheel for about 20-25 years, and they were absolutely unable to rise up to that occasion. They have not been able to deliver. So I now live in Telangana, for instance, because of my job. Take a state like Telangana, which is Hyderabad, which is positioning itself as IT city. Yes. A state like Telangana has high levels of youth unemployment. I don't know the exact figure, but I think they need, let's say, 2 crore jobs over the next 5 years to make sure that social fabric holds together at least. They have invested huge resources to bring in IT, which is creating maybe 12-15 lakh jobs, 20 lakh jobs. And most of those jobs are highly skilled jobs. So people from other states are coming and taking. It's not the Telangana youth which is getting the job. So the question is not being asked on whose behest, on whose decision were huge quantities of state resources put into developing a sector which fundamentally can't solve our social requirement. तो ये सवाल तो पूछा ही नहीं गया है, और अब ये जब इनसे मैनेज नहीं हो रहा है तो ये भाग रहे हैं. सो आई हैव अ फीलिंग इट वन एलिमेंट ऑफ इट इज दैट कि लेट्स लीव, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट. लाइक हिस्टोरिकली दिस क्लास हैज नेवर हैड अ सोबरिंग रिफ्लेक्शन अपॉन इटसेल्फ कि नहीं हमसे नहीं हुआ. वो नहीं बोलेंगे वी वर लेट डाउन बाय पॉलिटिशियंस या रिजर्वेशन जो भी बोल के अब ये जा रहे हैं. The other section of elites which were maybe not directly involved in this project but were adjacent to it. जैसे तुम entertainers की बात कर रहे हो, वो तो बॉम्बे की जो entertainment industry है बॉम्बे में रह ही नहीं सकती. Bombay is unlivable. Yeah. Right. So they will stay in Dubai. Dubai is like what, a 2.5 hour flight. Yeah. तो मतलब at that level of access and affluence, बहुत easy है वो actually. You just fly in. You stay in like some 5-star hotel or whatever. लेकिन इनके एफिलिएंट एरिया भी एफिलिएंट नहीं रहे, जैसे बैंड्रा वेस्ट या पाली हिल, इन जगह भी आप जाओ तो ये भी सारे टूटे पड़े. नहीं, आप जा ही नहीं सकते. वॉकेबल नहीं है, ड्राइवेबल नहीं है. राइट. देयर इज द प्लान फॉर बॉम्बे नाउ इज ग्रेट, यू नो, रीजेनरेशन. वो इतने समुंदर पे सड़क बना रहे हैं, बहुत चीज ऊपर नीचे कर रहे हैं. आई कुड बी रॉन्ग. मुझे नहीं लगता दिस ब्रिंग्स बैक बॉम्बे. आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रोजेक्ट और दैट इज वायबल.
but huge amounts of money has been spent. अभी जैसे अभी few weeks ago I went to Bombay. I got down at the airport to South Bombay, Marine Drive, literally. वो under ceiling से जाके under the sea जाता है. In 20 minutes I was in Marine Drive. I was like, ये कैसे हो गया? अच्छा 20 मिनट में पहुंचे? हाँ पहुंच गए, सीधा आप जाओगे सीलिंग, सीधा निकलते हो, सीलिंग पकड़ते हो, एक्सप्रेस हाईवे, सीलिंग से उतरते ही नया एक्सटेंशन आ गया है. अच्छा मैं गया नहीं अभी. ओके. तो आई वाज लाइक इफ आई एम अंबानी दिस इज सो यूजफुल टू मी, क्योंकि मैं अंटिला पहुंच गया 25 मिनट में, राइट. बट कितने हजार करोड़ रुपया खर्चा हुए हैं फॉर बिल्डिंग दिस, विच इज वेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड, टोल्स है. तो ये किसके लिए, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ द सिटी के लिए आपने ये बनाया है? ये तो रिडिकुलस है कि पब्लिक के लिए यूज. और बहुत लोग, मैं तो मतलब बहुत ऊपर से बोल रहा हूँ. आई एम श्योर लाइक पीपल हु लिसन टू दिस कमेंट विल हैव मच मोर डिटेल्स और विल पॉइंट आउट दैट यू मिस्ड दिस और यू मिस्ड दैट. मैं तो बहुत ऐसा ऊपर बोल रहा हूँ, राइट. सो दैट सेक्शन इज, बॉम्बे itself is unlivable despite spending so much money and all of that. तो जो adjacent circle है वो भी लीव कर रहा है, right. In any case you don't actually physically need to be here. So that section is leaving. So that is one element. The other second dangerous trend is India is held together by the patience of the marginalized. The great contract of Indian nationhood, unlike our South Asian neighbors, is कि एक तो बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए स्टेकहोल्डरशिप टू लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को चालू रखने में आपका भी स्टेक है. You are part of this and we are giving, the state is giving some guarantees to you. Some of those guarantees are political guarantees in terms of reservation and things like that. Some of those guarantees are implied guarantees, right? जो लिखित में नहीं है, but जैसे we have a huge standing army, huge paramilitary framework, ठीक है, BSF से लेकर CISF वगैरह, पुलिस की भर्तियाँ, ठीक है. कोई इस पे एनालाइज नहीं कर रहा कि आपको इतने लोग चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे. Because at some point, this also becomes a employment safety net, a social security net. जैसे रेलवे के लिए बोलते हैं कि it's the biggest employment generation program. Railways, banking, all of these, army, military, paramilitary, these were employment guarantees. Yeah. Right. Where large section of India, you were saying that you are very poor. If you crack this, your life will still be hell. You will live somewhere. बहुत ही basic salary मिलेगी, लेकिन आप उसमें एक डिग्निफाइड तरीके से अपना परिवार चला सकते हो, एंड यू कैन रेज योर नेक्स्ट जनरेशन टू गेट एजुकेटेड. मे बी दे विल गो. सो यू हैव गिवन देम द जनरेशनल ड्रीम, होप, राइट. दैट इज होल्डिंग इंडिया टुगेदर. नाउ इन द लास्ट 25 years दैट dream has been systematically broken down. The great Indian dream, the great American dream is I start a business, like, you know, one great idea will make me a millionaire. The great Indian dream is not instantaneous. The great Indian dream is I will struggle. My father, my family, my parents, my mother struggled, but वो यहाँ पर थे. I will come up to here. My next generation incremental growth होगा. Education is the pathway. We have systematically broken those pathways down. At what point the patience of the marginalized wears off? Which is why, and I think it is wearing off, और India की जो political class है, generally when you go to these English speaking Savarna liberals, they're like, oh, politician. No, I think politicians are very sharp in India, right? क्योंकि the nature of our elections and the robustness of the election system, despite what now Rahul Gandhi is revealing, basically ensures that you have a class of politicians, state level and national level, right, across parties, who are very attuned to the क्षेत्र and the space. तो political class को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है, which is why politics is again pivoting back to social guarantees, caste census, policy, welfareist. जो लोगों को समझ नहीं आ रहा अचानक ये क्यों हुआ, right? एंड मेरी रीडिंग इस पे ये है कि कोविड वाज अ बिग थिंग. जब वो माइग्रेंट्स लाइक वर वॉकिंग बैक, यस, राइट, नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लाइक, यू नो, ऑल दीज पीपल, दिल्ली, बॉम्बे स्पेशली, हाथ खड़े कर लिए, ट्रेनें नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, आप पैदल जाओ. ये पैदल चल के बिहार, राजस्थान, MP हर जगह गए. नोबडी वेंट होम एंड बर्न्ड देयर सिटीज डाउन, कि मुझे अपनी बीवी बच्चे को उठा के सूटकेस खींच के
2 स्टेट पार करनी पड़ी, ठीक है, नोबडी रॉब्ड एनीवेयर, ऐसा नहीं कि रास्ते में, ठीक है मुझे बिहार जाना है, ये कोई टाउन है, यहाँ कोई गाड़ी मिल गई, एक आध 2-4 यूथ का, किसी ने कि एक फोन तक नहीं छीना किसी का, चुपचाप ये घर गए ना, ये अपने घरों में जाकर इन्होंने तुरंत हमने कोई इलेक्टोरल अर्थक्वेक देखा कि सब वोट निकाल दो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी ऐसा था, पूरा एजुकेटेड एलिट तब का वेट कर रहा था, अब इसका झटका है। इनफैक्ट ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उनको गालियां दी कि तुम यही डिजर्व करते हो। हाँ, उल्टा ऐसे दिया, उन्होंने कहा तुम यही डिजर्व करते हो, स्टेट टू स्टेट, हाँ, तुमसे रेवोल्यूशन नहीं हो रही, तुम्हारे बस का कुछ बस का नहीं है। एक्चुअली व्हाट आई फील हैज हैपेंड इज द रीजन व्हाई दे डिडंट ब्रेक थिंग्स डाउन is because the poor in this country or the marginalized, which is usually marginalized castes, आपका एक बहुत instinctive understanding है of what the state is actually capable of delivering and not delivering. I think in Nepal's case what has happened is the youth feel that the state can actually give a lot more, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, which is why there is anger. यहाँ पर they realized in the COVID के thing कि कांग्रेस बीजेपी का सवाल ही नहीं, आप डिलीवर ही नहीं कर सकते, है ही नहीं आपके पास, है ही नहीं आपके पास। So that patience that, you know, for 25 years you said development will happen. I'm seeing all of these neighborhoods develop, IT develop. Dream is कभी ये वो गुड़गांव से बाहर आकर और भी क्षेत्रों में जाएगा, कभी तक हमारे पास भी पहुंचेगा। अब मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा। तो quietly their contract with the political class has changed. अब भाई ये आके मेरे को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, क्वाड्रुपल इंजन मत बताओ, तुम सीधा बताओ हमारा जो फार्म लोन है वो माफ करोगे कि नहीं करोगे, लाडली बहना स्कीम है, जो भी स्कीम है, डायरेक्ट ट्रांसफर करो, पैसा दो, कास्ट के हिसाब से बताओ तुम क्या दोगे नहीं दोगे, राइट्स, सिविल राइट्स, वी आर बैक टू दैट। सो इन मेनी विच वेज दैट पेशेंस वेयरिंग ऑफ इज ऑल्सो ए ट्रेंड विच नीड्स टू बी सीन विद द पलायन और द माइग्रेशन ऑफ द एलिट्स। These are two parallel things which need to be read together. So what comes after is a scary question, because when the elites leave, make no mistake that they will suddenly open up spaces here. जैसे बॉम्बे के entertainment industry is a great example. Many of them might live in London and Dubai or wherever. That doesn't mean now suddenly यूपी बिहार से talent आके अब वहाँ पर घुस गया। नहीं, talent उनका ही है, कंपनियाँ उनकी है, फार्म हाउसेज उनके हैं, सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस उनका जिप कोड अलग हो गया, ठीक है। तो दे विल कंटिन्यू टू रिटेन दैट कल्चरल कैपिटल एल्सवेयर, राइट। द ओनली विजिबल थिंग दैट वी विल स्टार्ट सीइंग, जो मैंने कुछ साल पहले वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, कि वी विल स्टार्ट सीइंग आवर सिटीज स्टार्ट टू कोट एंड कोट लुक पोरर। स्टारबक्स बंद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कोस्टा कॉफी, थर्ड वेव आपको श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, आपके जो एलिट बुक स्टोर्स वगैरह है वो कम होने लग जाएंगे, ठीक है। वो अभी अगर 10 है, 3-4 साल बाद 6-7 रह जाएंगे, 10 साल बाद शायद एक आधी रह जाए, राइट। सो दैट श्रिंकेज विल स्टार्ट हैपनिंग। एंड ऑन द अदर साइड पॉलिटिकल क्लास ने पिछले जो 10 साल का जो पॉलिटिक्स रहा है इंडिया में, एक स्पेशली नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में, इन्होंने एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। दे हैव trained people into the spectacle of violence without accountability, right? तो बहुत सारा ऐसे मैं देखता हूँ दिल्ली में एनालिसिस है, इस्लामोफोबिया, yes, नो डाउट इस्लामोफोबिया, इस पे तो कोई बात ही नहीं है, ऑफ कोर्स है, बट along with that what you've also done is the same people you've mobilized into beating up Muslims or doing violence and exclusion on scheduled caste and, you know, marginalized groups, you've also taught them that there are no consequences as long as you're playing for the right team. Yes. And as long as you're a mob and as long as you're on the right team, right? You're okay to do that. You're okay to do that. आज आपको इसका पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है, बट ये जो कल्चर आपने ट्रेन नॉर्मलाइज कर दिया है, dangerous है, बहुत डेंजरस है। dangerous. Once the institutions start collapsing, आपके पास ये वायलेंस रोकने का कैपेसिटी चला जाता है, राइट? आपने सिस्टमैटिकली इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। So when I see all of these 3-4 things combining, then it becomes problematic, right? थोड़ा morbid and dark है, but again, but that's true. I think there are many people who can see it, but they are not able to articulate it. Actually, the problem is a lot of people don't realize how dark it can get, right? And I don't want to make a sensationalist thing, and I'm saying this with disclosure. It's a complete hypothetical.
बट कई बार मुझे ऐसे लोग आके बोलते हैं कि यू नो इंडिया इज ऑलरेडी फाशिस्ट एंड ये वो. सर तुम क्या बोल रहे हो? लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुलेआम सड़कों पे बोल रहा है इलेक्शन प्रोसेस जो है हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. ठीक है, इन आवर नेबरहुड ओनली, डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, राइट? ही वुड हैव बीन अरेस्टेड एंड हिज पार्टी बैंड, राइट? और ये अभी तक यहाँ पर इसीलिए नहीं हुआ है, नॉट बिकॉज द रूलिंग पार्टी इज पर्टिकुलरली दिलदार, ऐसा नहीं है. आवर इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल होल्डिंग समवॉट, Which is strange because अगर पिछले जिस तरह से institutions पे assault हुआ है पिछले सालों में, why is it still is a very important question and I think the future of India is tied to that. और हमको बहुत डरना चाहिए इस चीज से, सोचना चाहिए गंभीर तरीके से. आई एम नॉट पैनिक मॉन्गरिंग और आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट विल डू इट, बट इन इंडिया इन आवर डेमोक्रेसी वी टेक सम थिंग्स फॉर ग्रांटेड. जैसे हम ट्रांजिशन ऑफ पावर को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. आराम से हो जाएगा. इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज इन साउथ एशिया ओनली, विद इन साउथ एशिया ओनली, या ऑल दीज एमर्जेंट पोस्ट, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है, राइट? कि आई हैव टोटल ऑटोक्रेटिक पावर विद इन माई पोलिटिकल सिस्टम. इलेक्शन होता है, फेयरली होता है, मोर और लेस फेयरली होता है, और मैं हार जाता हूं, अब मैं गद्दी छोड़ रहा हूं टू गो सिट इन द ऑपोजिशन. In a lot of cases, this doesn't happen. Then people will come out in the streets to protest. Then you have to call in the army. एक बार आप आर्मी ले आते हो, now the army class doesn't need the ruling class. Right? ये मैं इंडिया की नहीं बोल रहा हूं, मैं हर जगह बोल रहा हूं, ये पैटर्न प्ले आउट ऐसे होता है. In India, we take it for granted कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता. I am beginning to just ask the question very politely. मैं नहीं बोल रहा ऐसा होगा, नहीं तो बोलते ही वो बोल देंगे टुकड़े टुकड़े एंड ऑल. मैं एकदम भी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत फेथ है मेरे को इंडिया पे, मेनली बिकॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड स्टेक होल्डरशिप. बट अ व्हाट इफ सिनेरियो, दैट्स वेरी स्कैरी. और स्पेशली अब इस मिक्स में तुम ऐड करो दिस H1B वीजा, दिस रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस अब्रॉड, तो जो एलीट तबका भी जो बाहर भाग रहा था, उनकी जगह नहीं है, उनको भी अब यहाँ आना पड़ेगा, राइट? सो द सोशल कॉन्ट्रडिक्शन विल गेट हाइटेड. जो बॉलीवुड के जो एलीट क्लास है, जो एकदम ही इंडस्ट्रियलिस्ट के बाद, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही है. ये जो H1B या ये जो रेसिज्म है या ये जो इमिग्रेशन के डिबेट्स हैं, ये जिनको इम्पैक्ट करेंगे, दीज आर लाइक IIT से पढ़ लिया आपने, ये वो तबका है, उनको वापस आना पड़ सकता है, उनकी जॉब्स जाएंगी. इनफैक्ट तेलंगाना में बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगा. इनको इनके EMI पेंडिंग पड़ेंगे, इनकी गाड़ियां प्लॉट पे, इनके ज्यादातर EMI पे हैं चीजें. हाँ, तो आपने लाइफस्टाइल तो बना लिया, गाड़ी खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, दैट्स द ओनली वे यू कैन अफोर्ड लाइक अ 15 crore 10 crore हाउस, बिकॉज यू विल पे EMIs फॉर द नेक्स्ट 25 years. अब आप बीच मझधार में आ गए, मार्केट रिटर्न्स के ऊपर आप सिर्फ ये नहीं चला सकते हो. And you will get very frustrated because the government politics is moving towards welfareism, right? So everybody हमारे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गरीबों को. हाँ, और वो तुम देख रहे हो ऑलरेडी, राइट? निर्मला सीतारामन के ऊपर मीम्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट? आज भी आई थिंक कल मैं देख रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आई हैव गिवन द इंडस्ट्री विच दिस इंडस्ट्री शुड इन्वेस्ट. ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बोल रही है इन्वेस्ट करो भाई, तुम बाहर क्यों लेके जा रहे हो? गवर्नमेंट इनफैक्ट पीयूष गोयल बोल रहा है, भाई ये क्या स्टार्टअप बना रहे हो, कब तक खाना डिलीवर करोगे? मतलब पीयूष गोयल बोल रहा है, जो उसको भी समझ में आ रहा है कि भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं कर रहा, इनोवेटिव कुछ नहीं कर रहा, चीप लेबर को बस एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. बट ये फैसिलिटेट किसने किया है? ये उसे वो बोल रहा है, एंड उसका मैंने रिएक्शन देखा, उसको ट्विटर पे स्टार्टअप ब्रोज ने उसको डांट दिया कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, कि तुम हमें क्या बोल रहे हो, हम फूड डिलीवरी करते हैं, आपके रूल्स इतने डिफिकल्ट है. मतलब वो अलग ही डिस्कोर्स पे ले गए, बट उसका पॉइंट तो एक्चुअली फंडामेंटली ठीक था. And it is the closest we have come to asking accountability from this cohort, right? अब मैं मानता हूँ कि government could have done or can do still many things better. उनका मतलब कुछ हद तक उनका भी legitimate है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो हम अपने से क्या करें? अगर हम इसका चिट्ठा निकाल के देखें, all the benefits that different state governments and the national government has given in these IT park, IT zone, ये वो, तुम ये छोड़ो, स्मार्ट सिटीज उठा के देख लो.
right? Smart cities mission, when the original thing had come out, I could be here and there off the top बोल रहा हूँ मैं, they said each city will get 10,000 crore. हाँ, ठीक है, 100 के ऊपर इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई, कुछ 102 वगैरह थी, फिर बाद में ऐड भी किया इन्होंने, बट 100 पकड़ लो. सो 100 cities, 10,000 crore. 5,000 crore per city will come from central government, 5,000 will come from state government. ठीक है, this money had to be spent within a certain period of time. I think 5 years period था या जो भी था, बाद में थोड़ा extend भी हुआ है शायद. इन्होंने शुरुआत में अब बना दिए, तब मैं तो तब से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू रिसर्च दिस इन दैट. तब इन्होंने बताया था, इसमें बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट ऊपर से बोल रहा हूँ कि they had not defined exactly what will be smart, but money is there and money will be parked in a private limited company, not with municipality, not so. जैसे पुणे था, पुणे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बनेगा, उसके पास वो पैसा आएगा, अब उससे डिस्पर्स होगा. तो ये पैसा कमाया किसने? ठीक है, ये सारा टेक सेक्टर गया, कहता हमें आता है स्मार्ट स्मूथ करना. सो दे पिक्ड अप ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, डैशबोर्ड वी विल मेक, यू विल नो पार्किंग में कितना होगा, वो साइन लगे होंगे पूरे इंडिया में, लाइक यू नो पार्किंग स्पॉट इतने एम्प्टी है, यू नो डस्टबिन में RFID टैग लगा दिया, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये वो, मतलब हजारों करोड़ रुपया गया है इसमें, विच इज पब्लिक मनी, which has ended up creating an entirely new B2B market for these tech companies. इन्होंने बहुत प्रॉफिट लिया because they said we will first tell you what is smart urbanism, and then we will give you the solution for it also. तो ये दिल्ली में मैं बता रहा हूँ 2018-19 की बात है. There was a smart cities convention. तो मैं स्पेशली आया था कॉलेज से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज. आई वॉज द ओनली एकेडमिक देयर. इट वॉज ए इंडस्ट्री मीट. 5-star होटल, आई थिंक ललित कहीं पर इन्होंने किया था. बाहर में ना सारे HP, ये विप्रो सबके स्टैंड लगे हुए हैं. ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट मेला है, बिक रहा है. स्टेज पे आके ये कंपनियां अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है, इमेजिनियरिंग इंडिया, एंड ऐसे पीछे एनिमेशंस चल रहा है. एंड आई एम लाइक, बट दिस इज अ पब्लिक पॉलिसी थिंग, पब्लिक मनी, लाइक व्हाई आर यू गाइज हियर? आई केम टू लिसन टू द स्मार्ट सिटी CEOs, मतलब बहुत सारे सिटीज के आए थे. वो भी आके बोल रहे हैं कि प्लीज हमें इनपुट्स दो कि कैसे करना है, क्या करना चाहिए, बिकॉज दे आर सम गवर्नमेंट ऑफिसर, दे डोंट रियली अंडरस्टैंड. तो इतने हजारों करोड़ रुपए इनके पास गया है. अगर इसी की अकाउंटेबिलिटी हम मांग ले, राइट, तो बहुत बहुत ज़्यादा. और ऐसे कितने स्कीम्स हुए हैं, कितने इनको बेनिफिट्स मिले हैं. इसी सेक्शन में से लोग ब्रेक ऑफ करके अपने अपने कंपनियां बनाई हैं इन्होंने. ठीक है, इन्होंने अपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप किए हैं. दैट मनी फीड्स बैक इनटू दैट थिंग. सो इंडिविजुअली नहीं, अगर कलेक्टिवली इस इकोसिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए तो इनसे ज़्यादा आउटरेज कोई होता नहीं है. इनका एटीट्यूड ये, हम इतना तो किए हैं इंडिया के लिए, हाउ डेयर यू आस्क, इंडिया हैज लेट अस डाउन. व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, राइट? तो दिस सेक्शन इज, I feel, completely failed India. They were good at coding, which is basically digital manual labor. AI रेस में हम पीछे चले गए. अभी गवर्नमेंट को बनाना पड़ रहा है रेड, लाइक IITB, टेक महिंद्रा, ऐसे 5-6 कंपनियों को जोड़ के एक कंसोर्शियम बना के गवर्नमेंट बोल रही है हम तुमको रिसोर्सेज देंगे, तुम अब AI बनाओ. ऐसे 5-6 इन्होंने बनाए हैं, कुछ कर रहे हैं. सेमीकंडक्टर चिप्स, हाँ, सेमीकंडक्टर चिप बना रही है. बट ये तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ रहा है ना. आप जो इतने हजारों करोड़ रुपए प्रॉफिट लिए हो इतने सालों का, ये जो सेक्शन के पास गया है, तो ये कहाँ गया है, राइट? सो आई थिंक देयर हैज बीन अ ग्रेट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसका पॉलिटिकल खाली ब्लेम करना इज नॉट द पॉइंट. दिस इज अ लार्जर सेक्शन, एंड दैट सेक्शन स्कोल्ड्स एवरीबडी एल्स, राइट? सो समवेयर आई थिंक इन इंडिया these questions were not raised as long as the perception was economy is growing. ठीक है, कि आपको लग रहा है ये फैलता जाएगा, तो कभी ना कभी चलो ठीक है, अगर कुछ एक्सेस भी हो रहा है कोई बात नहीं, फैलेगा, ये बाहर की तरफ जाएगा. अब नाउ इट्स श्रिंकिंग, द कॉर्नर्स ऑफ द रूम्स आर बिकमिंग डार्कर. अंधेरा आ रहा है, आपको दिख रहा है, अब हलचल मच रही है. सो इन दैट मिक्स, इफ यू थ्रो इन सोशल अनरेस्ट, in that mix, if you throw a polarized society, जहाँ आपने marginalized लोगों को precarious कर दिया है, social employment opportunities shrink कर दिए हैं, elites आपका भाग रहा है यहाँ से, right? And
real questions about transitions of power, legitimacy of the political processes, question mark aa rahe hain abhi. These are all indicators of not good things. So I started by saying, I hope we as a nation come together and say, कि भाई, we lost our way. Let's get our act together, and maybe we solve all of this. I don't know, like for example, if एक हमारी जो क्लास है, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उसको तो आप कह रहे हो कि आप बिलोंग ही नहीं करते यहाँ पे. आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को वो जितने भी हैं, स्पेशली लो कास्ट मुस्लिम जो हैं, जिनकी चमड़ा का कोई काम है या कोई भी काम है छोटे मोटे, वो सारे आपने उनको ग्रो, मतलब एक वर्क फोर्स में आने की पॉसिबिलिटी ही आपने ख़त्म कर रहे हो. तो it's not a very good situation. Absolutely, and it's not just like, you know, if you look at Muslims, but also state wise आप देख लो ना, एक तो पैन इंडिया हो गया है, Muslims have been completely sort of marginalized. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आ जाओ, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर हायरिंग फ्रीज कर दिया आपने, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को स्मॉल कर दिया है, तो आपने तो इन सेक्शंस को भी स्क्वीज आउट कर दिया है, राइट? सो यू स्क्वीज्ड देम आउट ऑफ द बेनिफिट्स इन ऑल ऑफ दिस ऑल्सो. प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाओ, राइट? प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज मोर एक्सपेंसिव. क्या उसके सेफगार्ड्स है, नहीं है, हम पे इस पे बात ही नहीं हो रही इंडिया पे एक्चुअली. अब जाके ये पॉलिटिकल मुद्दा बना, विच इज व्हाई आई एम सेइंग पॉलिटिकल क्लास इज नाउ रिस्पॉन्डिंग टू इट. नाउ राहुल गांधी इज कमिंग एंड सेइंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन लगना चाहिए, एंड इट इज एन इशू बीजेपी इज नॉट ओपोजिंग. उनको भी पता है. हाँ, उनको भी पता है, राइट? सपोज करो, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, somebody who's worked in private universities for 10 years, I used to feel मेरे लाइफ टाइम में ही नहीं होगा, बट सडनली इतनी फास्ट चेंज हुआ है ये. इनफैक्ट कॉर्पोरेट्स वाला भी प्राइवेट रिजर्वेशन, जो कि एक रिडिकुलस लोग मानते थे कि इट्स नॉट गोइंग टू बी, बट इट वाज नॉट रिडिकुलस. इन 2006-7 में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन थी. अच्छा. इसको डिफ्लेट किया गया, फिर ऐसा लग रहा था कि you're right कि हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं हो रहा है, ये तो 10-20 साल लगेगा. बोले ये थोड़ा ज्यादा हो गया. हाँ, जो प्रो रिजर्वेशन बोल रहे नहीं यार, हाँ, ये ज्यादा हो गया है. अब फटाक से कॉन्वर्सेशन हैज पिवटेड बैक. बट इसमें एक चीज ये भी इंटरेस्टिंग बोलो ना, कि जैसे मैं कल तुम्हारी स्टोरी भी देख रहा था उसमें इंस्टाग्राम पे, तो यू ऑल्सो सेड अबाउट इट कि ये जो सारे मुद्दे जो उठा रहे हैं, somebody I think asked you about the decline of बहुजन पॉलिटिक्स, डिक्लाइन ऑफ दलित पॉलिटिक्स, इसके बारे में बोला है कि वो ख़त्म क्यों हो गई, कम क्यों हो गई. लेकिन एज यू सेड ऑल्सो कि ये जो सारे मुद्दे हैं कि प्राइवेट सेक्शन में रिजर्वेशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए, इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए, ये सारे मुद्दे दलित इंटेलेक्चुअल, बहुजन इंटेलेक्चुअल्स ये बहुत टाइम से उठा रहे थे. इवन प्राइवेट सेक्शन में रिजर्वेशन वाला मुद्दा तो राहुल सोनपिंपले की पार्टी का एक सबसे मेन मुद्दा था. जब वो आए थे तो बहुत लोगों ने बोला था कि ये क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता. अब राहुल गांधी ही उस मुद्दे को उठा रहा है. कास्ट सेंसस वाला मुद्दा है, वो कितने सालों से, इवन जब दिलीप मंडल हमारी तरफ थे तो वो उठा रहे थे बहुत सालों से. अब तो उसको उठा रहे हैं कि कास्ट सेंसस पहले था कि क्या मुद्दा है, इसका क्या पॉइंट है. मतलब दिलीप मंडल ही नहीं थे, बहुत सारे लोग और भी उठा रहे. शिरीन ने भी करी थी, सुमित सामोस ने, बहुत सारे लोग उठा रहे थे, तो वो चल रहा था. तो मतलब ये सारे मुद्दे जो उठा रहे हैं, या फिर जो इनफैक्ट राहुल गांधी की आप सुनो तो कभी भी लगता है मतलब मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है, ऐसी बात है. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं. तो एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें जो मुद्दे हैं, ये तो मतलब कांशीराम और उन टाइम से चले आ रहे हैं. तो पॉलिटिक्स अभी भी उसमें उसका चेंज हो गया. अब उसको बीएसपी लीड नहीं कर रही, मेन स्ट्रीम ये पार्टीज कर रही हैं. सो आई अगेन, मतलब जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई डिड नॉट ग्रो अप इन द मूवमेंट, but I've studied the movement at least in the last whatever years. The way I see it is against the backdrop, जो मैंने बुक में एक्चुअली फ्रेम भी करने की कोशिश की है, कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखो तो 2-3 चीज़ें आई हैव टू ले इट आउट. लाइक नंबर 1 इज when the British leave, certain spaces open up in the political structure. There were a lot of these Savarnas, Brahmin caste elites जो ब्रिटिश एडजेसेंट थे, बट वो कभी भी सेंटर में नहीं आ सकते क्योंकि इट्स अ कॉलोनियल थिंग. वंस दे लीव, दे मूव्ड हियर, राइट? एंड द वे इंडिया वाज बीइंग रन इन द अर्ली डेकेड्स वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर
like there is a national level politics which is coming out of New Delhi, and then there is regional feudal thing. तो कांग्रेस पार्टी का भी वही स्ट्रक्चर था कि आप हरियाणा के पॉलिटिशियन हो कांग्रेस के, डिलीवर मी हरियाणा, आप आंध्रा के हो, डिलीवर मी आंध्रा, राइट? And then there is a discourse at a national level, which is setting up all these bodies and policies and things like that. That national politics was in the hand of maybe 800, 900 families. Maybe multiply by a little bit, but it was a very, very small microcosm. And that number, like उसी families में से judge भी निकल रहे हैं, bureaucrat भी निकल रहे हैं, media is also there, civil society is also there. And that section reproduced itself through, like you go to Doon, come to Stephens, that section. I think 80s we saw the contradiction of this system not being able to hold itself. India, I feel we overlook this past part, but 70s तक आते आते India was very much on the trajectory of our South Asian neighbors. There were multiple separatist movements, violent हो गया था, large scale unemployment, great dissatisfaction, no great political answers, no great reason to be keeping the system going. But where India changes dramatically is in the 70s and 80s we also see, the script changing a little bit. जिसके roots are in the 60s. 60s में already caste coalition तैयार होने शुरू हो गए थे. People started realizing, see, partition is also a project of two political parties creating nations without opposition. Yeah. So how do you handle Congress of the 60s? सारा institution उनका है, they've built the nation, everything. So to handle that machinery, you're like your caste, my caste, this caste, you bring 4%, I'll bring 6%, this one will bring 7%, that one will bring 6%. Together, if we add it up, we might be able to beat Congress. If we beat, मैं 7% लाया, मुझे 7% के लिए ये चाहिए, you're 10% you. So it was a very transactional understanding. We don't actually have to come together intellectually. Kanshiram's project brings that intellectually, right? That's Bahujan movement. Bahujan movement, BSP's success is one thing, but also the impact it has on other parties. Yeah. They have to change their way of politics. I think that is where a second round of buy-in happens by large sections of India's marginalized into the project. Power, मतलब हम election जीते नहीं जीते, सरकार बनी नहीं बनी is one level, but it is also a faith in the process कि yeah, we have a say in this, we could be, all of that. तो वो एक बहुत बड़ा process यहाँ बनता है. Now I think what has happened is that process was consistently attacked and broken down by these Savarna elites in the 2000s. Yeah. Right? कहीं ना कहीं इसको तोड़ा गया है and we move towards this unquestioned access to this section, and the idea was कि the market will deliver. ये type की politics हमको पीछे कर रही है. We grew up hearing this all the time. Coalition government, caste politics is keeping India backward and all that. खिचड़ी सरकार and all progress that. We need strong leader. आ गया मजा. आ गया बड़े. ठीक है, कर लिया, ले लिया, right? So now in many which ways, if you see the political class pivoting back, in many which ways it is also accepting that the only way to keep the Indian social fabric together is to go back to that sort of politics, right? Where you have to kind of give stakeholdership to different sections of society. IT will not solve the job crisis or the identity crisis in Jharsuguda or Buxar or, wherever, right? In Bhilwara or in Dankuni, it's not going to solve that. You need much bigger answers for that. और आपकी imagination उतनी बड़ी होनी चाहिए. देश बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा है. Right? So I feel that there are many, it's a very interesting moment right now in India. ये किसी भी तरफ में बहुत जल्दी एक्सट्रीम में जा सकता है. There is also actually the political class has now started coming around. The total control that BJP and Modi had, अब वो भी एज आउट हो रहे हैं, उनकी भी 75 साल की उम्र हो गई है, राइट? कल ही बर्थडे था, सबने हैप्पी बर्थडे विश किया. हाँ, तो
मुझे भी बुलाते तो मैं भी कर देता, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है. बट मेरा पॉइंट ये है कि अभी दैट फॉर्मेशन इज ऑल्सो एजिंग आउट. उनका चैलेंज है हाउ टू री इन्वेंट माई सेल्फ. इसीलिए अभी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म, ये वो जेन जी लव्स XYZ ये सब हो रहा है. उनके जो सेकेंड टियर लीडर थे जो बोल रहे थे कि ये अब आएंगे इनके बाद, मोदी के बाद, गडकरी कोई बोल रहे थे, योगी आदित्य, दे आर ऑल सफरिंग इन देयर ओन वे सम क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी. आई थिंक काफी पेड कैंपेन भी उनके खिलाफ पार्टी के थ्रू चलाया जाता है. हाँ, व्हिच आई कैन सेंस इट वेरी वेल. हाँ, तो वो क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, तो इन मेनी विच वेज बीजेपी ऑफ 2025 एट द नेशनल लेवल इज बिगिनिंग टू रिजेंबल यूपीए ऑफ 2010-11. लिटिल बिट लाइक दैट. हाँ, जस्ट बिफोर द अन्ना प्रोटेस्ट. राइट, अन्ना प्रोटेस्ट में वो पूरा फट के बाहर आ गया था, बिखर गया. बट जस्ट उसके पहले वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे थे विद इन द पार्टी, चल रहा है क्या पता नहीं हुज इन चार्ज. क्योंकि आजकल ट्विटर पे भी देखो तो बहुत लोग जैसे जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं ये क्या रोड है, ये क्या है. यस, उसमें से कई लोग हैं कि वो फॉरेन भी चले गए रिसेंटली. इजी हो गया, वियतनाम जाना, थाईलैंड जाना, श्रीलंका जाना, भूटान जाना. तो वो कह रहे हैं अरे ये क्या चल रहा है इंडिया में. Exactly. मतलब इतनी साफ सुथरी सड़कें हैं वहाँ पे. मेरा भाई अभी श्रीलंका जाके आया, वो कहता है इंडिया में कोई रोड ऐसी हुई नहीं जैसे श्रीलंका में. यहाँ पे हर रोड पे धपक धपक धपक. तुम एक अच्छे हाईवे पे भी जाओ तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे चलेगी, धपक 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 धपक. मतलब वहाँ पे एकदम स्मूथ सीधी चलती है और लोग लेन को फॉलो करते हैं. तो लोग अब चूंकि बाहर जा रहे हैं, और मैं इनकी बात कर रहा हूँ प्रिविलेज क्लास, जो कि जिनको लगता था इंडिया में क्या खराबी, ठीक ही तो राइट लगा अच्छा भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है. नहीं, तो प्लस अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल, प्रिविलेज क्लास की लाइफ हार्ड बन रही है. इसीलिए मैंने शुरू में बोला ना गुड़गांव का, किस सेक्शन को चुभन हो रही है, वरना चिल्ला क्यों रहे हैं. ये जो तबका है ही सड़क पे, जो रील बना रहा है, हम स्विमिंग कर रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ी डिस्कोर्स आया जिसने 50 करोड़ खर्च किया भाई. 50 करोड़ खर्च किया. हाँ, कैमिलियास. हाँ, अगर उनकी लाइफ अच्छी चलती रहे तो उनको आज भी इंडिया अच्छा लगेगा. दैट इज अ रियल कॉज ऑफ वरी कि दिस इज नाउ फॉलिंग अपार्ट अ लिटिल बिट. राइट, सो बीजेपी एट द नेशनल लेवल इज नाउ रिजेंबलिंग कांग्रेस ऑफ दैट एरा. राहुल गांधी को एक इमेच्योर लीडर माना जाता था, अब उनकी भी एक सीजन्ड हो गई है. नाउ ही इज सीन एज लाइक, हाँ, ही हैज पेड हिज ड्यूज. He is not just a dynast. वो जो पैदल चल रही है ना, पैदल चल के उसने जो कैलोरी बर्न करके जो किया है. और जिसने भी राहुल गांधी की वो स्टाइलिंग की ना, उसको अवार्ड देना चाहिए. उसने जब शुरू किया कन्याकुमारी से क्लीन शेवन थे, और जब लास्ट आया वो दाढ़ी शेव नहीं की, वो कश्मीर में है, दाढ़ी निकली हुई है, बारिश हो रही है, और वो हाँ बारिश बर्फ पड़ रही है. वो जो एक ट्रांजिशन आप दिखाते हो, समवेयर राहुल गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर ग्रोज अप. सारा गेम ऑप्टिक्स और इमेज का गेम है. हाँ. कुछ ऐसी फोटो जिसमें बहुत बारिश हो रही है, लीडर खड़ा है, लीडर खड़ा है, मेंटली सबकॉन्शियस, अरे ये क्या भाई. अरे ये वाला नहीं, जो इसके पहले वाला जो महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन हुआ था, उसमें शरद पवार की एक फोटो आई थी कि वो कहीं पर एक रैली दे रहे थे, एंड उनका तो फेशियल हाफ पैरालिसिस है, और भीग बारिश हो रही है और खड़े हैं. दिस इज आफ्टर 2019 इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन होगा, और पूरे ऐसे महाराष्ट्र में फैल गया टाइगर जिंदा है, ठीक है, कि लाइक ये अभी भी लड़ रहा है. एंड इट्स सम ऑफ दोज इमेजरी. इलेक्शन में इंदिरा गांधी का बहुत फेमस है, वो पोस्ट इमरजेंसी हाथी चढ़ के गई थी वो वहां पर. मोदी भी कर रहा है कि माँ को गाली दे दी, आप मेरी माँ को दे दी. चल नहीं रहा, लोग कह रहे हैं चल नहीं रहा है. अगर चल पड़े तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं चल पड़े तो वो बहुत बैकफायर भी करता है. तो आई थिंक नाउ आई एम सीइंग मेनी अम्बेडकराइट्स आल्सो, यू नो, सॉर्ट ऑफ बीइंग मोर कंफर्टेबल बीइंग सीन अलाइंड और नेक्स्ट टू राहुल गांधी. मैं नहीं बोल रहा हूँ कांग्रेस में घुस गए, कांग्रेस में नहीं जाएंगे, बट दे आर कंफर्टेबल विथ व्हाट ही इज सेइंग, मेनली बिकॉज ही इज सेइंग अ लॉट ऑफ हिज बीएसपी एजेंडा. अब रिमेन्स टू बी सीन व्हाट कांग्रेस एक्चुअली डज. दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. वो बहुत मेरा हमेशा से वही सवाल रहा है इनके ऊपर. बोल तो वो ये रहा है, 3 states कांग्रेस इज इन पावर, तेलंगाना, कर्नाटका एंड हिमाचल. दिख तो नहीं रहा मेरे को. इवन मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत देखी है मैंने. अशोक गहलोत के टाइम पे उन्होंने कुछ दलितों के लिए कुछ किया नहीं है. वायलेंस बढ़ा था. इवन इंद्र मेघवाल, जिनकी जो बच्चा था, जिसकी मतलब पानी के उसको छूने के लिए मार दिया था, तो अशोक गहलोत वहाँ जा भी नहीं रहा, बिकॉज उसको लग रहा है कि इससे मेरा कास्ट अर्थमेटिक बिगड़ा जाएगा. तो एक बच्चा, 8 साल का दलित बच्चा, जिसको मार दिया उन्होंने, वहाँ पे इतनी नेशनल न्यूज़ बनी है. उस स्टेट का सीएम मिलने तक नहीं जा रहा. इनफैक्ट सचिन पायलट, आई थिंक उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट उसने फिर भी दिया था, लेकिन अशोक गहलोत जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, कुछ नहीं.
तो इन्होंने, और इनफैक्ट अशोक गहलोत की जो पोस्टिंग भी देखो आप, जितने भी प्लम पोस्टिंग है चीफ सेक्रेटरी की, सब सारे अराउंड इसने सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट को ये देता है काम, जबकि खुद है नहीं, वो खुद थोड़ा मिडिल कास्ट से आता है। तो इनका मतलब राहुल गांधी की बातें तो चलो अच्छी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन क्या हो हमें भी पता नहीं। इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक राहुल हैज बिकम गुड एट बीइंग अ ऑपोजिशन लीडर। या He's become good at being a good opposition leader. ये उसका होता हाँ, है, जो 5-6 साल पहले तक उसको बोलते थे तुम ट्विटर से चलाते हो, तुम सड़क पे, यू आर नॉट कमिंग ऑन द ग्राउंड, अब उसको ये नहीं, कुत्ता खिलाता है, हाँ, अब उसको वो नहीं बोल रहा है। He's become a good opposition leader, but whenever Congress comes to power in this post 2000s era, right, it tends to play it very safe. It tends to try to keep the things in balance. It tends to try to fulfill its electoral promises, but make sure that it doesn't have a वो घड़ा को maintain करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं that's where they always lose their edge. So again, like, you know, in the middle of all of this, whether there is a possibility of a radical new reimagining of the Indian nation. Nations also need to, you know, reimagine themselves every generation or 2 generations. आपको एक नया imagination चाहिए होता है, right? So I think we need a new imagination of what this nation is. The last time we had one was early 2000s, जब वो APJ अब्दुल कलाम आए और बोला 2020 तक हम सुपर पावर हो जाएंगे, है ना? आ गए 2020। हाँ, 2020 तो उल्टा गया ना, actually. उल्टा गया है। Was one of our worst years as a nation. So we grew up in college that time thinking, we are a rising power, 21st century is dragon and elephant and all of that, and India and China, Europe is aging out, USA is decadent, अब India China आएंगे ऐसे करके, ठीक है? तो we grew up, that was a national imagination, and it was an imagination of aggression, it was an imagination of अपना time आएगा, you know, आ गया। I think now we need an imagination of क्या खोया क्या पाया, ठीक है? Let's take stock. क्या हम कर पाए, क्या हम रियलिस्टिकली नहीं कर पाए, थोड़ा अपनी, मतलब वो पुराने टाइम बोलते हैं ना, चादर उतनी पसारो जितने पैर, whatever is, like, you know, like, stay in your limit. What can we do actually? Realistically, are we going to be a superpower? Are we going to be a regional power? Are we going to be a tier 2 power? क्या आप कर सकते हो, right? इस पे we need, and fantasy can't be only at the international level. Fantasy has to be about a national level. What have we given after 75 years, 70 years to some of our states even, right? आप go to a state like Odisha, go to Assam, go to Chhattisgarh. After independence also, इनके जो सबसे बड़े शहर हैं, I'm not even saying rural area, Bhubaneswar, Guwahati, what is the youth aspiration? Are they feeling confident, or are they feeling like they've sort of been left behind, right? तो नागपुर, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, माहौल क्या है यूथ में? लाइक, आर दे अग्रेसिव एंड फीलिंग लाइक अपना टाइम आ रहा है, वी आर राइजिंग, और आर इन जनरल वी हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस द महत्वाकांक्षा और द एस्पिरेशन? आई थिंक अभी मेन तो वही है, डिलीवरी जॉब्स। हाँ, तो वही है ना। तो अब 20 साल से मनरेगा का काम कर रहे हो, 10 साल से जोमेटो में बिरयानी डिलीवरी कर रहे हो, एक पॉइंट के बाद यू हैव टू आस्क, नो, लाइक, व्हाट आर वी डूइंग हियर? एटलीस्ट 5 to 6 people have messaged कि मास्टर्स कर रहे हैं, रियलिस्टिकली आर आस्किंग मी, शुड आई डू अ PhD, या आई शुड जस्ट टेक अ डिलीवरी जॉब, राइट नाउ आई एम डूइंग दिस। सो you're seeing this play. It's not one off case. I know anecdotal हमको नहीं होना चाहिए in that sense, 5 है तो what does that mean? But मेरे को दिख रहा है, like, in terms of what this ecosystem is able to create, क्योंकि जो elite jobs है, जो सोनीपत यूनिवर्सिटीज़ है, ये वो आपका इंटरनेशनल थप्पा जब तक लगेगा आपको नौकरी ही नहीं देगा। एकेडमिया की बात कर रहा हूँ मैं। एकेडमिया तो चलो फिर भी एक बहुत ही छोटा सा सिस्टम है इंडिया का, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा है। If you think about all the government colleges, हाँ, वो सब मिला के देखो तो अगर आप डिग्री कॉलेज तारापीठ पढ़ा रहे हो, डिग्री कॉलेज झारसुगुड़ा पढ़ा रहे हो, डिग्री का, तो आपका तो करियर ही खत्म है, राइट?
तो वो सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती जैसे राजस्थान में बहुत होती थी, तो वो सारी चीज़ें। बट मैं ये कह रहा था कि जैसे हाँ अकेडमिया चलो एक है एस्पेक्ट, बट अपने आसपास जैसे मैं देखता हूँ जो जॉब्स हैं, जैसे जर्नलिज्म में देख लो, अभी भाई पैसा ही नहीं है किसी के पास जर्नलिज्म में, बिल्कुल कोई तुम किसी उस पे देख लो नॉर्मली जो एडिटिंग के कोई जॉब्स रिसेंटली आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, तो मतलब वो सारी चीज़ें भी बड़ी वो हैं। बॉम्बे में मेरे दोस्त हैं, उनकी भी हालत ख़राब है वाला की, क्योंकि बॉम्बे की रिसेशन चल रहा है मेजर, फिल्में चल नहीं रही, कुछ नहीं चल रहा, तो वो क्या कर रहे हैं। तो एक बड़ा वियर्ड सा ट्रांजिशन वाला फेज़ है। पहले के टाइम में इनफैक्ट एक लोग इस चीज़ के बारे में कम बात करते हैं, बट ये जो PSUs थे एक टाइम पे, जैसे गेल हो गया, ONGC हो गया, और ये NTPC हो गया, तो ये सब छोटे छोटे PSU थे, तो उसके थ्रू एक मार्जिनलाइज्ड क्लास की भी एक मिडिल क्लास तैयार हुई थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जॉब देने के लिए। तो वो फिर उनके बच्चे और वो सब वो उस PSU से डेवलप है, लेकिन रिसेंट टाइम में वो सारे बंद हो गए, तो वो जॉब चली गई। फीलिंग यू विल सी इन द नेक्स्ट 5-10 years a PSUization of our big private companies. इनको या तो by force या by a mix of their own thing, they will have to start taking that role on. Unfortunately, the problem is they are in businesses where they can't absorb huge amounts of labor. Right? A lot of PSUs were built around natural resources. मतलब वो उनका काम ही बहुत बड़ा है, coal mining हो गया and all of that. But I have a feeling कि in the coming days you will see a PSUization of some elements of Ambani, Adani या जो भी ये है, इनको देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, because social contract गड़बड़ा जाएगा, उनकी भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो you will see, I think happening. इंटरेस्टिंग। तो एक फाइनल सवाल जाने से पहले, एक सिंस यू टीच जेन जी जो आजकल एक बड़ी मिथिकल सी टर्म हो चुकी है, तो एक लास्ट इंडिया का जो जेन जी है, उनके क्या एस्पिरेशन है, कैसे सोचता है, किस तरह का है, ये भी एक मिस्टीरियस सी चीज़ है। सो एनी कमेंट ऑन दैट? पता नहीं है, जेन जी तो बुढ़ा गया अभी से। Gen Z has aged out. Like let's also be like, who do we mean by Gen Z? A lot of Gen Z are now in their 20s. Yeah. Right. I have students who have taught in college are already married now. Right. They're married. They're getting engaged. They're getting into their jobs. They're getting. So Gen Z, in many which ways, has already entered formal adulthood. Right. और बहुत level तक I see them very similar to where we were. But their lives are harder because money is scarcer and things are becoming, as we've discussed. So I think Gen Z का जो भी एक pop था, एक hype था, I think seeing them at 16 years old and seeing them at 26 years old, all of that hype and pop has disappeared. They're not really bringing any new energy into the workspace, into the political arena, into the social media arena. बोर्ड है इनफैक्ट, बोर्ड है, प्लस मतलब तुम इन्फ्लुएंसर्स ही देख लो इंस्टाग्राम में, वो 6 साल से गेट रेडी विथ मी वीडियो बना रहे हैं, मेकअप वीडियो बना रहे हैं, बट यू आर नो लॉन्गर 19 years old. Right now you're 25, 26 years old, but you're talking like a teenager, you're acting like a teenager. वही तुम कंटेंट करे जा रहे हो. After a point of time, you know, you start becoming a caricature of your own self. A lot of Gen Z culture now in 2025 feels like it's parodying itself. Yeah. Right? There's nothing new, fresh. In fact, they also have lost the capacity of reflecting and moderating themselves. They are leaning into it harder. Yeah. कि मैं ये बैंड सुनता था या सुनती थी या ये फुटबॉल क्लब फॉलो करता था, I will go into it harder. So in that sense, they are becoming bigger parodies of themselves as a cultural level. For the later second half of the Gen Z and the early Gen Alpha, अगर आप इसको merge करो, तो as a teacher एक बहुत dangerous trend I'm beginning to see. I think something has catastrophically gone wrong with our international curriculum IB schools network. ये proliferate होते हैं 2006 के बाद. My guess is in response to the OBC reservations, एक parallel pipeline of education आ जाता है. But उसके reasons क्या रहे, मैं उस पे जाने, इस पे मैं बहुत बोल चुका. But just since you asked as a teacher, when I started teaching 10-11 years ago,
the students who were coming in from these IB schools in class in the university didn't feel like university students. They felt like class 12, 11 school children. I can't articulate why, but वो है ही नहीं, आपको दिख नहीं रहा है. अभी it feels they have regressed to like when first year college में जब आते हैं university में, they feel like class 8, class 9 students. Somewhere their intellectual and personal maturity they don't feel like they've grown up. They've been handled so much कि आपको a huge part of growing up is working things out for yourself, right? Learning stuff that works for you, not works for you, sometimes through painful processes, sometimes in isolation. ठीक है? When you go into these schools which are charging so much money, there's a lot of pressure on them to create value. A lot of this value is created by overhandling the child. ठीक है? So I'm in the university, I get parents messaging me, why didn't you tell me my child was not attending class? Why will I send you an email? University, that's not a child, that's an adult. But they are used to a school telling you every 2 weeks, sending you a PDF, these are the strengths. इस बच्चे ने ये असाइनमेंट किया, इनकी स्ट्रेंथ ये है, आप इनको यहाँ डेवलप करो, वहाँ डेवलप करो. So this person who's coming out is a very sterile personality. एकदम basic, normie, sterile. They dress a certain way, they talk a certain way, but as people, you know, like you actually are a great curator of this, like, you know, personalities. Like, I think when I was also younger and like you went around, you met people, you just met characters. Yeah, characters. वो नहीं मिल रहे. वो नहीं मिलते हैं. सब सेम दिखते हैं. सेम बातें करते हैं. यूनिवर्सिटी में तुम जाते थे, you used to meet people और तुमको देख के लगता है ये सर्फियर है. कुछ unusual है, पागल है. तो इसलिए इंटरेस्ट जगता था कि ये कुछ करना चाह रहा है. Yes. वो खत्म हो गया. अभी freaks have gone out. Freaks have gone out. And freaks are now. सारे rough edges उन्होंने खत्म कर दिए. Vulnerability खत्म कर दी. So everybody is a smooth version जो कि एक. Yeah, and like, you know, like now rough edge means I have a piercing, I have a tattoo, but that is also a look you're wearing. Yeah, that's just a look. That so doesn't mean. This very sterile, smooth version of person when you bring in, it is actually scary because then this is the next generation which is coming. Yeah. So then you've actually taken out the interesting elements of culture. You've taken out, you know, and incidentally this is happening in places जहाँ पर वो दिन रात चिल्ला रहे हैं critical thinking करो, ठीक है, you know, work out, problem solving. They can't do it. I take a lot of students to field work and I have been for about 7-8 years. अभी जो latest 2-3 बार मैंने किया है with my university students, मैंने उनको बोला भी, like, I don't mean it as a critique of you. I think you've been let down a lot by this. They can't talk to people. मतलब उनको idea ही नहीं आ रहा है कि कैसे बात करना है. Either they will be over patronizing or over guilty, या very arrogant. Like this idea that as people we can just casually communicate is not there. Like many of my students, like parents will call me, आपकी train से क्यों लेके जा रहे हो, बस से लेके क्यों ले जा रहे हो, I'm paying for the flight, right? So you've actually missed out on a huge element of the social material reality around you. तो मतलब that is my thing. मेरे को ऐसे बहुत बार लोग बोल भी देते हैं कि तुम जेनजी को बहुत ज़्यादा गाली देते हो. जेनजी तो अब बुढ़ा गई है, मतलब now they are into EMIs and careers. But I think overall in 4-5 years time we will be able to look back at Gen Z के इनका achievement क्या रहा, what have they been able to do, and we'll realize apart from some meme pages, some dating app stories and some alt accounts and fashion thoda, actually they're a very conservative generation which are actually much more sterile, and they're not even conservative in an interesting way. They're in a very basic risk taking wala nahi hai, bahut normal. I've seen that. Superb. So on that note, thank you so much, Professor Ravikant, and those who are watching. I'm very sure now you are curious or super curious to read Professor's new book, which is available on Amazon, on bookstores, everywhere except airports, because I don't know why they don't keep
books on airport. Somebody told me that they charge to keep books on airport, but I don't know. So it's available everywhere. Meet the Savarna. Please do read it. I highly recommend. In fact, I don't need to tell you because you have seen this conversation and I'm sure you're going to buy it. So yes, and please हमारे podcast को भी आप support करिए. Please become a member. There are new member only episodes on Patreon, YouTube membership. So please do it. अभी हम लोग स्टूडियो में भी शूट कर रहे हैं और बड़ा महंगे हर एपिसोड हैं. YouTube के फ्रेंडली हमारे टॉपिक्स होते नहीं है, तो हमारी उतनी इनकम आती नहीं, तो हर एपिसोड से हमें नुकसान ही अभी झेलने को मिल रहा है. सो जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आई हाईली रिकमेंड आप रेजर पे के थ्रू दे दीजिए, वन टाइम दे दीजिए, वॉट एवर. इफ़ यू थिंक दैट दिस कॉन्टेंट इज़ वैल्यूएबल देन प्लीज़ डू इट. यस, सो थैंक यू सो मच. आप भी एक बार अपील कर दो यार मेरे लिए. यार, अनुराग इज़ probably India's best podcaster. I think he deserves a much bigger platform. It has been a great mystery to me why Anurag doesn't have a TV show. I think it is good actually because in this format he can still... Not possible. Yeah, he can curate these conversations and these conversations need to be sustained. So please support his work. Please support the podcast. He's doing great work and overall he's curating some of the most important conversations in culture right now. So do your bit. Don't just lazily listen to free content. Pay for it. ठीक है, पैसा दो. बहुत लाइफ हार्ड हो रही है. ओके, इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है. We need money. हाँ. So on that note, thank you so much for listening or watching this episode.